Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Student, in the previous lecture we have already completed the 3 exercise of chapter 2, fractions and decimals. Now the 4th exercise 2.4 and the first question is find. We have given some numbers and we have to find the solution of them. That means आपको divide यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, divide करना होगा. Our first number is 12 divided by 3 upon 4. 12 divided by 3 upon 4. आप जब भी किसी नंबर का डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शनल नंबर का जब आप डिवाइड करेंगे तो आप डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मल्टीप्लाई में. एंड फॉर दैट यू हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. मीन्स डिवाइड का साइन आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. और ये जो नंबर है सामने 3/4, इसका आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. दैट मीन्स 4/3. ओके, नाउ वी हैव 12 into 4/3. नाउ मल्टीप्लाई 12 and 4. 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 3. बिकॉज इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हैं. न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, देन 3 into 3 into 1 you will get 3. okay, now the common factor of 48 and 3 is 3. that means you can divide both the numbers by 3. मींस न्यूमरेटर को भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं. So our answer will be 16/1 और डिनोमिनेटर में आपको 1 रखने की जरूरत नहीं है. That means our answer will be 16. Okay, in the same way we can solve this question also. We have given 14 divided by 5/6. So first of all we have to convert this divide sign into multiplication. And for that you have to write the reciprocal of 5/6, which is 6/5. Okay, now write 1 in the denominator of 14 because यहाँ पे denominator नहीं था तो आप 1 रख सकते हैं. Now multiply the numerators 14 and 6. 14 6 जा 84 divided by 5, 1 is 5. Okay, now find the common factor, that is HCF आपको फाइंड करना है 84 का एंड 5 का. बट 84 और 5 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होता है. और जब 1 जो है कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1 के अलावा कोई और नंबर आपको ना मिले तो आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे. जैसे यहां पर जो है कॉमन फैक्टर हमारा 3 था तो हमने डिवाइड कर दिया, बट हियर द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1. So we will not divide this number and this is our answer. But this number is an improper fraction as the numerator is greater than denominator. So we will divide 84 by 5 and our answer will be 16 integer 4/5. Then our next question is 8 divided by 7/3. Here we will write 8/1 and convert this divide sign into multiplication, and for that you have to do the reciprocal. Find the reciprocal of 7/3, which is 3/7. Now multiply the numerators. That means 8 and 3 का आप multiply करेंगे. 8 into 3 will be 24 and 7 into 1 will be 7. Now find the common factor of 24 and 7, and the highest common factor of 24 and 7 is 1. So we will not divide these numbers, but this number is an improper fraction as the numerator is greater than denominator.
So we will divide 24 by 7 and our answer will be 3 integer 3 upon 7. Okay student, then our next question is question number 2. In this question we have given that find the reciprocal of each of the following fractions. That means we have given some fractions and we have to find the reciprocal of those fractions. Okay, रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं? तो कोई भी नंबर आपका दिया है, कोई भी फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आप चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे उनकी वैल्यू. ओके, देन क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर. तो आपको वो जो आंसर जो आएगा, रेसिप्रोकल जो आएगा, उसको क्या करना है? आपको बताना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन मींस क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. When numerator is less than denominator, then that fraction is proper fraction. And when the numerator is greater than denominator, then that fraction is an improper fraction. और जब आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो, when the value of denominator is 1, that means या तो डिनोमिनेटर नहीं लिखा है कुछ भी, तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है. ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? that number will be, that fraction will be a whole number. ओके, तो वो आपको बताना है यहाँ पर. चलिए चेक करते हैं. So first number is 3/7 and we have to find the reciprocal of this number. So reciprocal of 3/7 is 7/3. 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/3 होगा. ओके, नाउ 7/3 को आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू जो है वो कैसी है. हियर 7 is greater than 3, that means numerator is greater than denominator, or when the numerator is greater than denominator, then that fraction is known as improper fraction. That means 7/3 is an improper fraction. Okay, so this is an improper fraction. Okay student, then our next question is 5/8 and we have to find the reciprocal of this number. So reciprocal of 5/8 is क्या होगा? 5/8 का रेसिप्रोकल, so it will be 8/5. मीन्स इसका जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो हम कहाँ रखेंगे? न्यूमरेटर रिप्लेस कर रख देंगे. ओके, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या हो गया है? सिर्फ प्लेस जो है इनकी इंटरचेंज हो गई है. नाउ आवर रेसिप्रोकल इज 8/5 and here 8 is greater than 5. That means numerator is greater than denominator. मीन्स ये जो है आपका क्या हो गया? 8/5 is an improper fraction. Okay, okay friend, then our next number is 9/7. So we have to find the reciprocal of 9/7, which is 7/9. The reciprocal is 7/9 and here 7 is less than 9. That means numerator is smaller than denominator. Okay, and when the numerator is less than denominator, then that fraction is known as a proper fraction. क्या कहते हैं इसको आप? Proper fraction उसको कहा जाता है. Okay, so next number is number 6. देखिए 3 के बाद मैंने डायरेक्ट 6 नंबर लिया है बिकॉज 4 5 आप कर सकते हैं. ठीक है, 6 नंबर थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं.
1/8 आपको जो नंबर दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, दैट विल बी 8/1। 8/1 मींस 8 ही होता है, उसमें आप 1 जो है डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। ओके, आप 8 आपका आ गया है और 8 जो है एक होल नंबर है बिकॉज इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं दी हुई है, दैट मींस 8 इज अ होल नंबर। Okay, friends, then our next question is question number 3, and in this question we have given some fractional numbers and we have to find the solution of those numbers. Okay, so our first question is 7/3 divided by 2. Here this number is a fraction and this is the whole number, means आपको fractional number और whole number का क्या करना है, divide करना है, and for that you have to write 7/3। डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल नंबर का आप डायरेक्टली डिवीजन नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो होल नंबर है इसके अपॉन में आप 1 रखिए और उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट मींस 1/2 हो जाएगा। 2/1 का 1/2, दैट मींस आपने रेसिप्रोकल कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर, 7 and 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स का, देन इट विल बी 7/3 2 जा 6। ओके, सो और आंसर इज 7/6, बट 7 is greater than 6, that means numerator is greater than 6, that means ये क्या हो गया आपका, ये एक improper fraction है and we have to convert it into mixed fraction and for that you have to divide 7 by 6. Okay, so our answer will be one integer 1/6. Then the second number is 4/9 divided by 5. 4/9 divided by 5. So here we will write 4/9 multiply, डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इस 5 के अपॉन में आप 1 रखेंगे तो और इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, बिकॉज आप जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं देन यू हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर और इसका रेसिप्रोकल आपका क्या होगा, 1/5 होगा। नाउ मल्टीप्लाई द numerators, 4 into 1 will be 4 and 9 into 5 will be 45. Okay, and here our answer is 4/45 which is a proper fraction, that means उसको mixed fraction में convert करना नहीं है। Okay, so our next number is 6/13 divided by 7. Here 6/13 divided by 7, so we will write 6/13 multiply, इसके अपॉन में आप 1 रखिए और इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, so our answer will be 1/7. So our reciprocal will be 1/7. Now multiply the numerator, that means 6 into 1 will be 6 and 13 into 7 will be 91. That means our answer is 6/91 और ये 6/91 जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें आप किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। Okay friends, then our next question is question number 4, find. So first question is 2/5 divided by 1/2. That means you have to divide this number by 1/2. Both the numbers are fractional number, so आप divide तो कर नहीं सकते हैं, you have to convert this sign into multiplication and वो आप कैसे करेंगे, 2/5 डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू रेसिप्रोकल, यू हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, दैट मींस दिस विल बी 2/1. नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, दैट मींस 2 into 2 will be 4 and 5 into 1 will be 5. Okay, so our answer is 4/5 which is a proper fraction. Okay, then our next question is 4/9 divided by 2/3. Here both the numbers are fractional numbers, so we cannot divide these numbers and for that we have to convert the sign of divide into multiplication.
एंड इसको आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. सो आवर रेसिप्रोकल विल बी 3/2. नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, दैट मींस 4 into 3 आप करेंगे तो आपका आएगा 12 एंड 9 into 2 आप करेंगे तो आएगा 8. ओके, नाउ आवर आंसर इज 12/18, बट इसको जो है आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में अभी कन्वर्ट करेंगे अगर होता है तो. अगर इन दोनों नंबर्स का 12 का और 18 का कुछ भी कॉमन फैक्टर अगर आता है तो आप फाइंड कीजिए. सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18 विल बी 6. So we will divide 12 by 6 and 18 by 6. So our answer will be 2/3, which is a proper fraction. Okay. Our next question is question number 4. Question number 3 जो है वो आपको होमवर्क में मैंने दिया है. Question number 4 आप देखेंगे, इसमें आपको बोला गया है 2 integer 1/3 divided by 3/5. दोनों ही नंबर फ्रैक्शनल नंबर हैं, बट दिस नंबर इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. कैसे करेंगे, तो 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 आप प्लस कर देंगे तो आएगा 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5. अब ये डिवाइड का जो साइन है इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए. 7/3 मल्टीप्लाई 5/3. क्यों, क्योंकि डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नंबर है आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड दैट विल बी 5/3. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, दैट मींस 7 and 5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 35 एंड डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9. ठीक है, समझ रहे हैं आप कि कुछ भी नंबर अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया है तो भी उसको आप क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन सेम मेथड करनी है यूज जो हमने यहां पर यूज की है. ओके, अब इन दोनों नंबर्स का कुछ कॉमन फैक्टर अगर आता है तो पहले आप वो फाइंड कीजिए. सो 35 और 9 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दैट विल बी 1 और 1 से आप डिवाइड नहीं करेंगे. सो हमारा आंसर जो है 35/9 है, बट इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मींस 35 इज ग्रेटर देन 9, दैट मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ओके, सो वी विल डिवाइड 35 by 9 and our answer will be 3 integer 8/9.